میرے سر پر ظلم کا پھندا ہے، میرے مرنے سے کب ڈرتی ہوں۔ بھٹو کی بیٹی دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم جنہوں نے زندگی جہاد مسلسل کی طرح کاٹی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ بھٹو کی پنکی ایک دن نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنے گی۔ The country really needs is reconciliation and reconstruction. میں بے نظیر بھٹو صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں مدبرانہ سیاست اور فیصلوں سے ملک میں جمہوری روایات کو پروان چڑھایا۔ شہید بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کی، آکسفورڈ سے فلسفہ، سیاسیات اور معاشیات میں ماسٹرز کیا۔ بے نظیر بھٹو کی عملی سیاست کا آغاز نظر بندی اور جیل سے ہوا۔ ملک میں ضیاء کا مارشل لاء لگا، ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے، محترمہ کو خاندان سمیت گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ Corruption, smuggling, terror are widespread, and these problems can only be aggravated while General Zia is there. ایم آر ڈی کی وجہ سے 1984 میں جیل سے رہائی ملی۔ جلا وطنی کے بعد 1986 میں لاہور پہنچی تو ان کا تاریخی استقبال ہوا۔ 1987 میں شادی ہوئی۔ 2 دسمبر 1988 کو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 1993 میں دوبارہ وزیر اعظم بنی۔ مشرف کی طویل آمریت کے خاتمے کی جدوجہد میں پہلا بڑا قدم اٹھایا جب 2006 میں میثاق جمہوریت پر دستخط کیے۔ 18 اکتوبر 2007 کو دوسری جلا وطنی کے بعد وطن واپسی ہوئی۔ I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land. استقبالی جلوس پر دہشت گرد حملے میں 180 سے زائد جیالیں شہید ہوئے۔ 27 دسمبر 2007 راولپنڈی میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئیں۔ ملتان موٹر وے پر دھند کا راز، ملتان تا سکھر موٹر وے M5 شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ ملتان تا فیصل آباد M4 انٹرچینج بھی دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ ملتان موٹر وے پر دھند کا راز، ملتان تا سکھر موٹر وے M5 شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ ملتان تا فیصل آباد M4 انٹرچینج بھی دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے دانیال اقبال سے۔ جی دانیال اقبال بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح ملتان شہر میں بھی دھند کا راج برقرار ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے جو شدید دھند ہے وہ اس نے شہر بھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ نہ صرف شہر کو بلکہ موٹر ویز بھی جو ہیں وہ دھند کی شدید لپیٹ میں ہے۔ موٹر ویز M4 اور M4 جو کہ ملتان تا فیصل آباد ہے اور M5 ملتان تا سکھر ہے، وہ دھند کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے موٹر وے پولیس کی جانب سے مسافروں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ دھند کے دنوں میں غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اور اپنی وہیکلز پر پیلی روشنائی والی لائٹس کا استعمال کریں۔ اس حوالے سے موٹر وے پولیس کا شہریوں کے لیے مزید یہ کہنا تھا کہ رات کے وقت سفر کے دوران متبادل راستوں کا استعمال کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں موٹر وے کی ہیلپ لائن 130 یا ہم سفر ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی۔ بہت دانیال اقبال آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح منشن آباد میں بھی شدید دھند کا راج، دھند کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، حد نگاہ صفر ہو کر رہ گئی۔ جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح منشن آباد میں بھی شدید دھند کا راج ہے، دھند کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، حد نگاہ صفر ہو کر رہ گئی ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے روحی شیخ غلام مصطفیٰ ندیم سے۔ جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں مین ہائی وے روڈ منشن آباد پر موجود ہوں۔ جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح منشن آباد میں بھی شدید دھند کا راج ہے اور ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہوئی۔ آنے جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حوالے سے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو منشن آباد کا موسم 9 سینٹی گریڈ پر پہنچ چکا ہے اور شدید سردی کی لہر بھی آئی ہوئی ہے۔ اگر میں ٹریفک کی بات کروں تو ٹریفک کے حوالے سے ٹریفک پولیس نے آگاہ کیا ہے کہ شہری سفر سے گریز کرے، اگر سفر کرنا ضروری ہو تو فوگ لائٹس کا ضرور استعمال کریں اور بے جا سفر سے گریز کریں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو اس وقت سفر سے آ رہے ہیں۔ سر کہاں سے آ رہے ہیں اور کتنی دیر کا سفر تھا اور کتنی دیر میں طے کیا؟ سر جی میں بھاون نگر سے آ رہا ہوں، تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر تھا، تقریباً 3 گھنٹے لگ گئے مجھے۔ اور میری یہ عوام سے التماس ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں
और सफ़र से गुरेज करें। जी बिल्कुल, शहरी की बात आपने सुनी कि वो आधे घंटे का सफ़र जो 3-4 घंटे में तय करके आए हैं, और शहरियों ने ये भी कहा है कि सफ़र करने से गुरेज किया जाए। सर्द धुंध, शदीद धुंध है, हादसा भी रोनमा हो रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस ने भी शहरियों को आगाह किया है कि शदीद धुंध में सफ़र करना। बहुत शुक्रिया शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, मुल्तान में शहरियों के लिए सरकारी आटे का हसूल मुश्किल हो गया। सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शहरी घंटों लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर। शहरियों ने हुकूमत से सस्ते आटे की फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान में शहरियों के लिए सरकारी आटे का हसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शहरी घंटों लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि 10 किलो आटे के हसूल के लिए सारा दिन जाया हो जाता है। लगे हुए 10 किलो आटे के लिए, तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ओपन सब्सिडी दे, बंदा जहाँ से भी मर्जी ले ले। यहाँ तो सारा दिन लग जाता है 10 किलो थैले के पीछे। बहुत रश है, इतना सुबह से खड़े हैं लाइन के ऊपर। 650 रुपये का आटा है, 3 घंटे से यहीं खड़े हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई कमेटी बनाए या कोई टीम बनाए जो एक्शन ले इनके खिलाफ। दूसरी तरफ डिप्टी डायरेक्टर फूड मुल्तान आसिफ रजा का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि डिवीजन भर में 60 सेल पॉइंट्स पर रोजाना की बुनियाद पर 80,000 आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। मुल्तान डिवीजन में इस वक्त जो है किसी किस्म की आटे की सप्लाई के हवाले से कोई शॉर्टेज नहीं है। 1766 शॉप्स हैं जिन पे हम डेली आटा सप्लाई कर रहे हैं, और उसमें 10 केजी के जो हमारे थैले हैं 81,000 के करीब हैं वो जो दे रहे हैं, और 10,000 के करीब हमारे 20 केजी के आटे के थैले जो हम सप्लाई कर रहे हैं। शहरियों ने शिकवा किया है कि इतनी मुश्किल से आटा खरीदने के बाद भी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। सस्ते आटे के स्टॉल्स पे 10 किलो आटे के थैले की कीमत 650 रुपए मुकर्रर है, जबकि आम मार्केट में आटे की कीमत काफी ज्यादा है। कैमरामैन हारून और साथी रिपोर्टर बिलाल नियाजी के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में दूध और दही की कीमतों को पर लग गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। दुकानदारों ने सरकारी निरखों की धज्जियां बिखेर दी, मनमाने रेट वसूल करने लगे। दूध 150 और दही 180 रुपए में फी किलो फरोख्त होने लगा। राना बिलाल की रिपोर्ट में देखते हैं। शहर औलिया में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, दूध और दही की कीमतों को पर लग गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। दुकानदारों ने सरकारी रेट हवा में उड़ा दिए, मनमाने रेट वसूल करने लगे। दूध की सरकारी कीमत 120 है, जबकि फरोख्त 150 रुपए में किया जा रहा है। प्रोडक्ट ऐसा फूड है जो यानी कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में शामिल है, और जैसे जैसे बढ़ता गया और रेट इनके मुसलसल आसमानों को छूते गए हैं, और गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। और जो अब पैसे देने के बावजूद भी खालिश चीज़ नहीं मिलती है, और इस पे अंदर गवर्नमेंट के जो मेन अफसरान है उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। दही की सरकारी कीमत 140 जबकि फरोख्त 180 रुपए में किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि प्राइस कमेटियां अगर खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए। गुजारिश करेंगे कि गरीबों के जो है बच्चे दूध नहीं पी पा रहे, क्योंकि दूध का रेट जो है इंतहाई कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। अब किसी शख्स की जो है दिहाड़ी 400 या 500 है, अगर वो 2 किलो दूध लेगा तो उसके 400 रुपए या 500 रुपए निकल जाएंगे, तो खाने के लिए उसके लिए बहुत मुश्किल है। शहरियों ने हुकूमत से दूध और दही की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हारून ताहिर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। चौधरी सारिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मुशावरत से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने सीनियर नायब सदर की तैनाती की मंजूरी दी। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने सीनियर नायब सदर चौधरी सारिक हुसैन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नाजरीन, ये अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। चौधरी सारिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मुशावरत से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने सीनियर नायब सदर की तैनाती की मंजूरी दी। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने सीनियर नायब सदर चौधरी सारिक हुसैन का नोटिफिकेशन जारी किया। मिंचनाबाद में क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी। मसीह बरादरी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। डॉक्टर अजीम आमिर पादरी ने क्रिसमस का केक काटा। तकरीब में मसीह बरादरी की कसीरी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरा क्या क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सारे अदारे और सारी कौमों ने हमारे साथ मिलकर क्रिसमस मनाया है, और इस दफ़ा हमने एक भरपूर क्रिसमस मनाया है, और पूरी दुनिया को हमने ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अक़लियतों के साथ है, और ये लोकल गवर्नमेंट, इंतज़ामिया, ताजर बरादरी, वकला सब ने हमारे साथ, NGOs ने साथ मिलकर मनाया है,
और हमने बढ़िया इंजॉय किया इस दफ़ा कि ये बड़ा एक भरपूर किस्म का क्रिसमस हमने मिंचनाबाद में और बहावल नगर में मनाया। और बुलेटिन में हम बात करते हैं निशात हाई स्कूल शाह शम्स कॉलोनी ब्रांच मुल्तान में सालाना नताइज की तकरीब सजाई गई। सालाना तकरीब के मौके पर स्कूल में तुलबा के लिए फन लैंड भी बनाया गया। कामयाब तुलबा ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। इस हवाले से देखते हैं अलिशा आसिफ की रिपोर्ट। मुल्तान में निशात हाई स्कूल शाह शम्स कॉलोनी ब्रांच ने सजाई सालाना नताइज की तकरीब। नताइज लेने तुलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद स्कूल पहुंची। पोजीशन होल्डर्स को इनामात और अवार्ड से भी नवाजा गया। किसी भी इदारे के लिए, स्कूल के लिए सबसे बड़ी कामयाबी क्या होती है? पोजीशंस। तो 287 पोजीशंस निशात ग्रुप ने हासिल की हैं और उसकी वजह यह है कि मैम साहबा ने जिस इदारे की बुनियाद रखी थी, जिन असूलों पे रखी थी, आज तक हम उसी पे चल रहे हैं। आज मेरी पोजीशन आई है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे गिफ्ट भी मिला है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। स्कूल में तुलबा के लिए खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। बेहतरीन नताइज आने पर स्कूल के तुलबा ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया, जबकि स्टॉल्स पे मौजूद मुख्तलिफ गेम्स खेल कर भी तुलबा लुत्फानंदोज हुए। मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ, मेरी पोजीशन आई है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं 3 क्लास में हूँ, मेरी 3rd पोजीशन आई है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों बेटों का रिजल्ट आया और दोनों की पोजीशन माशाल्लाह अच्छी आई है और निशात स्कूल जिंदाबाद। स्कूल प्रिंसिपल जफर हुसैन का कहना था कि इस साल बच्चों के नताइज बेहतरीन हैं, जिस पर हम बहुत खुश हैं। ये सब असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत है। साल भर बेहतरीन कारकर्दगी के बाद बच्चों को इनामात देना तो बनता है। दूसरी तरफ वालिदैन भी बच्चों के बेहतरीन नताइज पर खुश नजर आए। पोजीशन लेने पे तुलबा का कहना था कि उन्हें फख्र है कि वो निशात स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान।